कॉलेज की प्रिंसिपल मैम से रिक्वेस्ट करूंगा वो अपनी माइक को अनम्यूट कर लें, वीडियो को ऑन कर लें, जिससे कि हम सेशन हाँ so my humble request to principal ma'am for today's introductory and welcome speech. थैंक यू सो मच डॉक्टर जितेंद्र जी। और आज एक बार फिर इस वेबिनार सीरीज में एक मोस्ट रेलेवेंट इशू जो स्ट्रेस मैनेजमेंट है एंड ड्यूरिंग लॉकडाउन इट्स वेरी रेलेवेंट जैसे विषय के लिए आज हमारे बीच में जो रुचि कपूर जी कतर से हमारे बीच में आज पधारी हैं, उनका मैं पूरे विवेक फैमिली की ओर से वेलकम करती हूँ, स्वागत करती हूँ और स्वागत करती हूँ सभी पार्टिसिपेंट्स का और सभी फैकल्टी मेंबर्स जो हमारे हैं टेक्निकल टीम में और हमारे मोस्ट रिस्पेक्टेड ऑल मेंबर्स ऑफ मैनेजमेंट, सबका मैं दिल से स्वागत करती हूँ। और आज का टॉपिक जैसा स्ट्रेस मैनेजमेंट जो सजेस्ट करता है और हम सब जानते भी हैं कि स्ट्रेस, व्हाट इज स्ट्रेस? स्ट्रेस इज द रिएक्शन ऑफ बॉडी एंड माइंड। हम सिर्फ इतना ही जानते हैं और स्ट्रेस कोई बीमारी नहीं है, ये भी हम जानते हैं। स्ट्रेस एक लक्षण है, एक कारण है, किसी बीमारी का बन जाता है और ये सेल्फ क्रिएटेड एक लक्षण है जिससे हम बच भी सकते हैं। तो एक ऐसी चीज जो हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है, एक छोटी सी स्ट्रेस जैसी प्रॉब्लम करती है, उसको लॉकडाउन में और ज्यादा हो सकता है। ये बदली हुई हमारी लाइफ स्टाइल, बदला हुआ डिसिप्लिन, बदली हुई सोच, आने वाले जीवन को लेके, फ्यूचर को लेके, स्टूडेंट्स, पार्टिसिपेंट्स, टीचर्स, बहुत सारी बातों को लेके शायद स्ट्रेस हो गया होगा। और अगर हो गया है तो इसको किस तरह से हम ही इसको दूर कर सकते हैं, शायद कुछ ऐसे ही। जब हमारे बीच में एक्सपर्ट्स हैं तो हम सब ये चाहते हैं कि आज का ये सेशन हमारे आने वाले 4 घंटे 5 घंटे या कल की सुबह स्ट्रेस फ्री रहे। अगर किसी की लाइफ में स्ट्रेस है तो मैं इस स्ट्रेस फ्री सेशन में एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत वेलकम करती हूँ और अपने आज के स्पीकर का भी थैंक यू। थैंक यू सो मच दीप्ति। Thank you, ma'am. Thank you, ma'am, for today's introductory and welcome speech. It is a great pleasure for me to introduce today's speaker, Ruchi Kapoor, madam. She is currently working as head of training and knowledge management expert, FIFA World Cup organization in Qatar. She is a motivational speaker, HR, training and knowledge management expert. She is a ICF certified business, career and life coach, and also AIHCP USA certified stress management consultant. She is working with Supreme Legacy in FIFA World Cup to Khaliji Bank, Qatar Finance Center in this sector. She delivers many honorary guest lecture with different universities. She delivers session on organization behavior, motivation, engagement, culture, and leadership. She is a meditation practitioner and teacher with a deep interest in yogic science. My request to today's speaker, Ms. Ruchi Kapoor, madam, for her deliberation. Thank you so much, Jitendra ji, and nice meeting you all. I would prefer to deliver my session today a little bit mixed. I will use more Hindi and English for the benefit of all the participants, just so that everybody is kind of inclusive in this session. I don't want to exclude anyone, and this is the reason I will kind of take everybody on board. So thank you so much, everyone, and it's a pleasure being with you today. And I'm feeling so lucky and so privileged that I have got this opportunity to make a difference in my own people from my own city. So I belong to Bijnor. So
And it gives me immense pleasure today to be with you all and addressing you all, because I feel that I'm in Bijnor right now. And this is the greatest feeling and pleasure for me. So thank you so much. And I will start now. And thank you also for this wonderful introduction for me. And I'm feeling so humbled for all this. So thank you, Jitendra ji. Thank you, ma'am. And thank you, management of Vivek College. And yeah, that's what I can say before starting my session. And please feel free to ask any question, send it in chat, whatever you may have, whatever you are suffering with. I've also sent a kind of little assessment questionnaire just to understand what you guys are going through and what I have to address the most. So having said that, assessment is not only for this session. Feel free to fill it up and I can reply as far as possible to all your queries and questions, even offline after this session. So feel free to post any question, any challenges you are going through, and I will make sure I'll address all of them. Okay, so shall we start now? Perfect. Yes, ma'am. You can start. Yes, sure. So I will first ask a question, and you need not to answer because it's a webinar, it's online session, but you can think in your mind. Have you ever felt stress if you're seeing a movie, when you are watching a movie, or you are with your friend and chatting and talking, right? You can just post it in chat also, a few people, so that I know your views. So I don't think so you ever felt pressured or stressed when you are with your friends. And simple reason is because you're so much engaged into that activity. आप उसमें बहुत ज़्यादा engage हैं वो बात करने में या movie देखने में, तो आपको stress feel नहीं होता है, right? You are in that moment and that's the key. लेकिन अगर आप वैसे बैठे होते हैं तो होता क्या है? There are so many thoughts going on in your head. Right? And these thoughts put you in a kind of strain or stress and you feel overwhelmed that what's going on. And because of this feeling of overwhelmness, what happens? It triggers biochemistry in your body. है ना? तो stress है क्या? Emotions है क्या? Thoughts है क्या? If you will go in at a very deeper level, you will find out these are all chemicals. This is all biochemistry. I will not go that deep today in this session because time is limited. So I'll give you very fundamental and profound and key tool today, how you can manage your stress. And sometimes we will have a bigger workshop, like maybe for 3-4 hours, and then I will take you through big details, like all the details about this mechanism. But today we'll keep it overview because time is short. All right. So I will share, I don't know whether I can share my screen. Can I do that? Yes, yes, you can share your screen. Yes. Okay, so I will share my screen. Okay. Can you see that? Yes. Perfect. So now I would like to give some stats to you all. The estimated cost of global economy due to depression and anxiety is $1 trillion per year lost productivity. So it's huge, it's massive, right? So we cannot just ignore it because it's costing us and the economy a lot. 42.5% employees in private sector in corporate India suffer from depression and anxiety disorder. What does it mean? It means every second person. It's huge, right? And we kind of still have social stigma and taboo talking about stress and mental health. We go through it, but we just show to the world we are superwomen and supermen out here dealing with this by ourselves, right? 38% of working women in India show signs of psychiatric morbidity. We are talking about women empowerment,
And we are like advocating women should go to work and be independent, be empowered. But what's going on? 38% of working women shows signs of psychiatric morbidity, not only mild symptoms. And what happens if woman is in stress? It's a big problem. She comes home and she spreads to the family. So this is the real tangible data, and all data and whatever I have taken from the internet. Sorry, I didn't put the source, but it is all available in the internet, right? So objective for today's session is we will understand stress and its causes. We will be aware of the impact of the stress, and we will also develop strategies to manage stress. So आज हम क्या करेंगे? आज हम स्ट्रेस के बारे में समझेंगे, उसके रीजन क्या है, उसके इम्पैक्ट्स क्या हैं, और हम क्या कर सकते हैं उसके बारे में. And this is the objective of the session. तो पर्सनल चैलेंजेस विद करंट क्राइसिस. अभी जो करंट क्राइसिस है, कोरोना क्राइसिस है, उसमें सबसे बड़ा इशू है कि वर्क फ्रॉम होम, सोशल डिस्टेंसिंग, लोगों का आना जाना बंद हो गया है बाहर. दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम. और अगर आप वैसे भी देखें, जो टॉप 3 प्रॉब्लम्स हैं स्ट्रेस के, दैट इज वर्क, मनी एंड फैमिली. कितने सारे सर्वेज हुए हैं, एंड टॉप 3 इज वर्क, मनी एंड फैमिली. ठीक है ना? और तीनों में इशू है अभी. वर्क फ्रॉम होम हो गया, मनी फियर है इकोनॉमिक क्राइसिस के, मेरी जॉब रहेगी नहीं रहेगी, मुझे जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी, मेरे बिजनेस का क्या होगा. देयर आर सो मेनी इश्यूज, राइट, इकोनॉमिकली. तीसरा फैमिली. अगर हमारे साथ पर्सनल ये सब इश्यूज हैं तो फैमिली इज बाउंड टू सफर. और सारा दिन घर में रहते हैं, हस्बैंड भी वाइफ भी, तो क्या करेंगे सारा दिन एक दूसरे को देख देख के. राइट. सो दीज आर द बिगेस्ट इश्यूज. तो इसलिए स्ट्रेस आ रहा है, एंजाइटी आ रही है, लोनलीनेस आ रही है, लोगों को बोर्डम आ रही है कि एक दूसरे की शक्ल बार बार देख देख के बोर भी हो जाते हैं कई बार ना. उसके बाद और दूसरी बात ये है कि बाहर जाने नहीं मिल रहा है, दोस्तों से मिलने नहीं मिल रहा है, कोई मूवी देखने नहीं मिल रहा है, शॉपिंग करने नहीं मिल रहा है. सो इट्स लाइक बिग इश्यूज कि हम सोशल सेटिंग में जैसे रहने के लिए ट्यून्ड हैं वैसे रह नहीं पा रहे हैं, which creates physical, mental, emotional well-being issues. तो अभी जो ये इश्यूज हैं ये ज्यादा आ रहे हैं. अब हमें इनको एड्रेस क्यों करना चाहिए? अब 2 वजह से एड्रेस करना चाहिए. पहला तो पर्सनल वेलबींग इज इम्पोर्टेंट, कि अगर हम खुद सही नहीं है तो वी कैन नॉट परफॉर्म. our performance, our efficiency will impact. ठीक है ना. दूसरी चीज ये है कि मेंटल हाइजीन जो है दैट इज मोर इम्पोर्टेंट देन फिजिकल हाइजीन. अगर आप ये देखोगे तो सारे इश्यूज जो हैं मेंटली ज्यादा रिलेटेड हैं. उसके लिए हम कुछ कर नहीं रहे हैं, है ना. सैनिटाइजर तो यूज कर रहे हैं, बट दिमाग के लिए, माइंड के लिए सैनिटाइजर कहाँ से यूज करेंगे? वो भी जरूरी है यूज करना. एंड देन बहुत ही फंडामेंटल चीज ये है कि मैनेजिंग क्राइसिस बाय स्ट्रेंथनिंग इनसाइड. दिस होल वर्ल्ड वर्क्स इनसाइड आउट, नॉट आउटसाइड इन. एंड वी कीप ऑन थिंकिंग दिस इज आउटसाइड इन. हम बाहर फोकस ज्यादा रहते हैं, अंदर फोकस कम रहते हैं. हाउएवर फंडामेंटली द वर्ल्ड वर्क्स इनसाइड आउट. तो हमें अपने आप को इनसाइड स्ट्रेंथन करने की बहुत जरूरत है इस समय पर. बिगर पर्सपेक्टिव ऑफ द प्रॉब्लम. ये कुछ डेटा है कि ग्रोइंग नंबर ऑफ डिससैटिस्फाइड एम्प्लॉइज दे आर इंक्रीजिंग. क्यों? क्योंकि लोगों को मीनिंग नहीं मिल रहा है जॉब में. जॉब दे आर गोइंग ऑन, ना तो उनको सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, बर्नआउट भी है, मीनिंग नहीं मिल रहा है. तो दिस ऑल लीड्स टू ऑल्सो काइंड ऑफ स्ट्रेसफुल सिचुएशन. काम तो कर रहे हैं लेकिन सेटिस्फैक्शन एंड फुलफिलमेंट नहीं है, स्ट्रेस बहुत है. ये कुछ एग्जांपल्स हैं कॉस्ट रिलेटेड टू स्ट्रेस. जैसे मैंने बोला 1 ट्रिलियन इकोनॉमिक इशू है स्ट्रेस का. अब स्ट्रेस के कुछ साइकोलॉजिकल रिस्क रिलेटेड डिजीजेस भी हैं, जैसे डायबिटीज. अब हम तो सोचते हैं ना कि डायबिटीज हेरिडिटी है, लेकिन अभी कितने सारे हुए हैं जिसमें देयर इज अ क्लियर लिंकेज कि स्ट्रेस से डायबिटीज होती है, स्ट्रेस से हाइपरटेंशन होता है, स्ट्रेस से कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस होती हैं, है ना. तो इतने सारे इश्यूज हैं स्ट्रेस के एंड सबसे फंडामेंटल इशू ये है कि हम उसको डील नहीं करते हैं, हम उसको लाइटली लेते हैं. वी नीड टू टेक इट मोर सीरियसली. अब ये एक रिसर्च हुई है यूएस में, उसमें उन्होंने दिखाया है टॉप कॉजेज जो हैं स्ट्रेस के वो क्या हैं.
तो एक है जॉब प्रेशर एज वी आर टॉकिंग, दूसरा है मनी जो हमने बोला, हेल्थ, रिलेशनशिप, पुअर न्यूट्रिशन, मीडिया ओवरलोड, स्लीप डिप्राइवेशन। कहीं ना कहीं इससे कनेक्ट कर पाते हैं आप सब? आपको कहीं ना कहीं लगता है कि हाँ कुछ तो ये मुझे भी इम्पैक्ट करता है ना? और आप अगर इसमें एक चीज देखेंगे कि इसके जो 7 फैक्टर्स हैं, 7 कॉजेज हैं, केवल एक पुअर न्यूट्रिशन को छोड़कर, नंबर 5 को छोड़कर, बाकी सारे ही कहीं ना कहीं मेंटल रिलेटेड है, माइंड से रिलेटेड है ना? तो रियल इशू कहाँ है? रियल इशू है माइंड में। अब इम्पैक्ट क्या है? देखिए 90% जो डिजीजेस हैं वो साइकोसोमेटिक हैं। साइकोसोमेटिक माने पहले माइंड से स्टार्ट होती हैं, स्टार्ट फ्रॉम आवर ओन माइंड, और वो जब एड्रेस नहीं होती तो बढ़ते 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 डिजीज का फॉर्म ले लेती हैं, ठीक है ना? और इम्पैक्ट क्या करता है? ये हमारी फिजिकल हेल्थ भी इम्पैक्ट करता है, हमारी मेंटल हेल्थ भी इम्पैक्ट करता है, इमोशनल भी इम्पैक्ट करता है, सोशल भी इम्पैक्ट करता है, और स्पिरिचुअल जो है थोड़ा सा पॉजिटिवली इम्पैक्ट करता है अगर पर्सन इज टेकिंग सीरियसली अबाउट स्पिरिचुअल हेल्थ। तो अगर चारों तरफ स्ट्रेस है तो स्पिरिचुअली हम थोड़े ज्यादा हेल्दी हो जाते हैं, क्योंकि भगवान का ही सहारा दिखाई देता है कि चलो ईश्वर की शरण में चलो, अब खुद तो समझ में नहीं आता क्या करें, राइट? अब व्हाट इज स्ट्रेस? अब स्ट्रेस है क्या असलियत में? There are so many definitions of stress. However, we are not going into definition. We are talking layman language right now. कि जो किसी को भी समझ में आ जाए, that is too many thoughts in our head leading to strains. इतने सारे थॉट चल रहे होते हैं और उसकी वजह से एक बहुत अनकंफर्टेबल हैवीनेस हमारे दिमाग में आ जाती है। होता क्या है, कई बार आपने देखा होगा कि हमें स्वेटिंग होने लगती है, हमारे कंधों में पीछे बैक साइड में दर्द होने लगता है, आंखों के ऊपर, ये आईब्रोज के ऊपर हैवीनेस लगती है ना? कंफ्यूजन होता है, फोकस नहीं लगता है, कई बार ड्राइनेस ऑफ माउथ हो जाती है, हम बोलना चाहते हैं बट बोल नहीं पाते हैं, ड्राइनेस हो जाती है ना? हाथ पैर ठंडे पड़ जाते हैं, फ्रीज हो जाते हैं हम। सो दीज आर ऑल इम्पैक्ट्स ऑफ स्ट्रेस। अगर आप लेकिन इस डेफिनेशन पर वापस जाएं कि टू मेनी थॉट्स इन हेड लीडिंग टू स्ट्रेन, ये थॉट्स हैं कैसे? वी नीड टू ऑल्सो अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ दीज थॉट्स। ये थॉट अगर आप ऑब्जर्व करेंगे, आज के सेशन के बाद 10 मिनट बैठकर ऑब्जर्व करिएगा, आप पाएंगे ये थॉट्स या तो पास्ट के हैं या फ्यूचर के हैं। या तो हम पास्ट में रहते हैं या हम रहते हैं फ्यूचर में, कि अच्छा उसने ऐसा कह दिया, कैसे कहा उसने मुझे ऐसा, अब नेक्स्ट टाइम ये सिचुएशन आएगी तो मैं ये कहूंगा, ये कहूंगी, ये बताऊंगा, फिर वो ये कहेगी, फिर वो ये होगा। तो मतलब या तो पास्ट है कि समथिंग हैपेंड इन पास्ट and we are relaying that story again and again in our mind. This is one. Second, then we are planning for the future. Okay, next time this will happen, what will I do? And we keep on playing this story in our mind, which leads to so many thoughts and strain and stress. Do you agree with that? आपका ऐसा लगता है कि ऐसा होता है? आप चैट में लिख सकते हैं yes or no or whatever. चैट में आ रहा है yes yes yes. Okay, great. Yes, आप देख सकती हैं, आपके स्क्रीन पे चैट नीचे शो कर रहा होगा, चैट का ऑप्शन। yes yes yes. Answers questions मैं बाद में लूंगी and that's ठीक है ना? Okay. So next हम जाते हैं, as I said कि most of the time जो हमारे thoughts होते हैं either they reside in past or in future. बट लाइफ कहाँ होती है? हम क्या पास्ट में जी रहे हैं अभी या फ्यूचर में जी रहे हैं? Where are we living right now here? अभी हमारी लाइफ की सच्चाई at this moment क्या है? At this moment, I am my truth is I'm talking to you on this webinar, and here this is my life right now. ठीक है, यही है मेरा जीवन अभी इस मोमेंट में कि मैं वेबिनार में हूँ, आप सबसे बात कर रही हूँ। एंड आपके जीवन की सच्चाई भी यही है इस प्रेजेंट मोमेंट में
कि आप इस वेबिनार को देख रहे हैं और आप मुझसे बात कर रहे हैं। तो दिस इज व्हाट लाइफ इज ऑल अबाउट। लाइफ इज इन प्रेजेंट, लाइफ इज नेवर बी इन पास्ट एंड फ्यूचर, एंड हम उस लाइफ को बर्बाद करते रहते हैं, वेस्ट करते रहते हैं, ईदर बीइंग इन पास्ट और इन प्रेजेंट, इन फ्यूचर। तो की क्या है? प्रेजेंट में रहना। अब हाउ टू मैनेज, प्रेजेंट में कैसे रहें, स्ट्रेस को कैसे मैनेज करें? तो रियल जॉब क्या है? इतना सब जो हमने बात की, रियल जॉब एंड रियल इशू क्या है? माइंड, थॉट्स, नॉट लिविंग इन प्रेजेंट मोमेंट। दिस इज कॉजिंग स्ट्रेस फंडामेंटली। हम उसको बाकी कुछ भी नाम दें, और एक्सटर्नल फैक्टर्स भी हैं लाइक मीडिया, एज हमने वो 7 फैक्टर्स देखे थे। मीडिया है, मीडिया ओवरलोड है, नेगेटिव न्यूज ओवरलोड है, फियर ओवरलोड है, लेकिन उसको अपने बॉडी के अंदर लेना, अपने सिस्टम के अंदर लेना तो हमारा काम है। कोई जबरदस्ती तो पंप नहीं कर रहा है, आपको जबरदस्ती तो बोल नहीं रहा है कि आप 10 घंटे टीवी देखिए, एक सेकंड में कोरोना क्राइसिस की न्यूज देखिए कि कितने लोग मर गए, कितने लोग पॉजिटिव आ गए। अरे छोड़ दो उसको, दैट इज एक्सटर्नल, नाउ लीव इट। अभी आपको क्या करना है? फोकस ऑन इंटरनल। अपने को स्ट्रेंथ करिए, अपने इंटरनल वेलबींग का ध्यान रखिए, इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग कीजिए। सो रियल जॉब इज क्वाइट द माइंड, real job is be in present moment, real job is manage your body, mind and emotions. Make sense? Are you getting it? समझ में आ रहा है ये चीज? तो अब कैसे करें ये सब, है ना? एक टेक्निक है माइंडफुलनेस, एंड माइंडफुलनेस derived from our ancient wisdom, yoga. Yoga is solution to everything. That's what my firm believe. तो योग is not only आसन। एक तो ये फंडामेंटल चीज जो है हमें समझ लेनी चाहिए कि योग केवल आसन नहीं है, योग is much more than आसन। पतंजलि योग सूत्र पढ़िए आप, अगर आपको मौका मिले, and you will get profound wisdom जो हम पढ़ते ही नहीं है, and ये हमारी धरोहर है, हमारी नॉलेज है। When I do sessions, I give examples of Patanjali Yoga Sutra. I teach them Yoga Sutra. I teach them Ashtang Yoga. But हम नहीं पढ़ते हैं अपने खुद, अपनी wisdom है तो हम granted ले लेते हैं, you know, घर की मुर्गी दाल बराबर वाला कहावत है कि हमारे पास जो होता है उसको granted ले लेते हैं. But we need not to take it granted because it's powerhouse of wisdom. We need to go through it. We need to learn. We need to read at least. भगवत गीता, profound knowledge is there. सब चीज का solution भगवत गीता में है, लेकिन हम पढ़ते नहीं हैं, है ना? तो उसको पढ़ना शुरू कीजिए. तो going back to mindfulness, mindfulness क्या है? Is a technique जो simplified technique है, प्राणायाम और मेडिटेशन को मिलाकर डिवाइस की है, और बहुत ज्यादा जो इसमें एलिमेंट्स हैं दैट इज फ्रॉम विपश्यना मेडिटेशन. अगर आप विपश्यना किसी ने किया है, आई हैव डन विपश्यना 3 times एंड आई स्ट्रांगली सजेस्ट जिसने विपश्यना नहीं किया है या करना चाहते हैं तो प्लीज एक्सप्लोर एंड गो थ्रू इट. तो माइंडफुलनेस जो है दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एंड द विजडम फ्रॉम योग and meditation is part of yoga. Vipassana meditation is also part of yoga in a broader umbrella. However, this is derived from all this wisdom together. और इसमें हम क्या करते हैं? We pay attention to the present moment. हम present moment में attention pay करते हैं with full awareness. है ना? कई बार ऐसा होता है कि लगता है हम present moment में हैं, लेकिन हम होते कहाँ हैं? Thoughts चलते रहते हैं दिमाग में. तो इसीलिए द वर्ड है विद फुल अवेयरनेस. यू हैव टू पे अटेंशन टू द प्रेजेंट मोमेंट विद फुल अवेयरनेस, दैट यू आर अवेयर कि क्या चल रहा है इस मोमेंट में. इवन यू आर अवेयर फॉर द सेंसेशंस, यू आर अवेयर विद द एनर्जी कि व्हाट एनर्जी फ्लो इज गोइंग ऑन इन माय बॉडी एट दिस पॉइंट इन टाइम. एंड दैट्स व्हाट माइंडफुलनेस इज ऑल अबाउट. एंड आई विल टीच यू हाउ टू डू दिस टेक्निक. एंड ऑल्सो व्हेन वी आर फुल्ली अवेयर, what we are doing, we are noticing. हम जान रहे हैं, we are noticing what is happening inside and what is happening outside. हमारे अंदर क्या हो रहा है और हमारे बाहर क्या हो रहा है.
And what is inside? Our thoughts, feelings, emotions. Inside में हम क्या, किस चीज पर पे अटेंशन करते हैं? अटेंशन पे करते हैं कि हमारे थॉट्स, हमारे विचारों में, हमारी फीलिंग में, हमारे इमोशंस में अभी क्या हो रहा है? Am I angry? Am I happy? Am I sad? अभी मैं गुस्से में हूं, तो acknowledge that. हाँ, मुझे गुस्सा आ। कितना करते हैं हम ये? हम तो बस गुस्सा हो जाते हैं, बट हम जानते हैं कि हम गुस्से में हैं या हम गुस्से में आ रहे हैं? ऐसा तो हम करते ही नहीं है कभी भी. तो we need to do that. Outside, we need to become aware of our outside also. Outside means हम किस सिचुएशन में हैं, हमारा एनवायरनमेंट कैसा है, लोग कौन है हमारे आसपास. So we need to pay attention. We need to be mindful. इसीलिए कहते हैं mindfulness से ही कहते हैं कि we need to be mindful. And then when we become mindful, when we become aware, फिर हम क्या करें? फिर हमें करना क्या है? हमें उसका जवाब देना है ना सिचुएशन का. और हम नॉर्मली जवाब देते कैसे हैं? अभी हम कैसे जवाब देते हैं? हम तो बस गुस्सा हो जाते हैं और शुरू हो जाते हैं. तुमने ऐसा कैसे कहा, तुमने ये क्यों किया, राइट? रिएक्ट करते हैं हम. एट प्रेजेंट वी रिएक्ट, वी डू नॉट रिस्पॉन्ड. एंड देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन रिएक्शन एंड रिस्पॉन्ड. तो आप चैट में लिखिए क्या डिफरेंस है रिएक्शन और रिस्पॉन्ड में. और एक दो रिप्लाई के बाद फिर आई विल एक्सप्लेन यू. ओके, सो आई विल गो नाउ. रिएक्शन और रिस्पॉन्ड में अंतर ये है कि रिएक्ट हम कर देते हैं इमीडिएटली, कंपल्सिवली, बिना सोचे बिना समझे, है ना. हमें कुछ बुरा लगा और हमने एकदम से उसको रिएक्ट कर दिया. रिस्पॉन्ड जब होता है, देन वी टेक अ पॉज, वी टेक सम टाइम. हम रुकते हैं, सोचते हैं कि हमें इसका कैसे जवाब देना है, और सोच समझ के विथ फुल अवेयरनेस, कॉन्शियसली एंड वाइजली हम उसका जवाब देते हैं. दैट इज रिस्पॉन्डिंग. सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन रिएक्टिंग एंड रिस्पॉन्डिंग. रिएक्टिंग बिना सोचे समझे जवाब देना, रिस्पॉन्डिंग सोच समझ के, रुक के, एक पॉज लेकर तब जवाब देना. एंड दैट्स द डिफरेंस. सो माइंडफुल मेक्स अस टू रिस्पॉन्ड, नॉट टू रिएक्ट. मेक सेंस? समझ में आया? ओके, जितेंद्र जी समझ में आ रहा है सबको? कैसे जा रहे हैं? हाँ, मैसेज आ रहे हैं मैम. आपके रिस्पांस पे थोड़ा लेट आ रहे हैं. एक हमें लगता है नेटवर्क प्रॉब्लम, इसलिए पहुंच नहीं रहे. रिस्पॉन्ड एंड रिएक्शन पे, हाँ, रिस्पॉन्ड एंड रिएक्शन पे आ रहे हैं, फिर यस यस आ रहे हैं. सो आप पीपल आर अंडरस्टैंडिंग, दे आर गोइंग थ्रू इट ना. 256 लोग जुड़े हुए हैं हमारे साथ शुरू से. 256, ओके. वेलकम टू ऑल 256 गाइस. अब ये माइंडफुलनेस देखिए इतना प्रोफाउंड है, छोटी सी बात है, अगर समझें तो बहुत बड़ी बात है. अगर आप ऐसा समझेंगी तो छोटी सी बात है, तो छोटी सी बात है. लेकिन अगर आप ये समझेंगी तो बहुत ही गहरी और बहुत ही बड़ी बात है. तो ये बहुत बड़ी बात है. और ये माइंडफुलनेस आज आई थिंक $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री होगी. अब आप ये देखिए, गूगल यूजेस माइंडफुलनेस. गूगल ने एक प्रोग्राम बना लिया है, सर्च इनसाइड यू, सर्च इनसाइड योरसेल्फ, and they roll out this program to each and every employee in Google. हर एम्प्लॉई गूगल के लिए ये प्रोग्राम ओपन है. और ये क्यों है? बिकॉज ये एक तो इमोशनल इंटेलिजेंस सिखाता है, न्यूरो साइंस पे बेस्ड है ना. और किसी दिन अगर हम कोई और वेबिनार करेंगे तो आई विल टेक यू थ्रू इमोशनल इंटेलिजेंस, कि इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है और उसका एप्लीकेशन क्या है ना. बट गूगल ने ये सब मिक्स करके प्रोग्राम बनाया है विच इज बेस्ड ऑन माइंडफुलनेस. एंड क्यों बनाया है? बिकॉज गूगल इज इनोवेशन कंपनी, गूगल इज इनोवेशन टेक्नोलॉजी कंपनी, है ना. तो इनोवेशन तब तक नहीं होगी जब तक आप फुल्ली अपने आप में प्रेजेंट नहीं है ना. भाई आज आप मुझे बोलो कि कोई भी इन्वेंशन कर दो एक, तो क्या मैं बस सो के उठ के इन्वेंशन कर दूंगी? कोई नहीं कर सकती हूँ ना, क्योंकि आई एम बिजी इन माई लेक्चर, आई एम बिजी इन माई ऑफिस, आई एम बिजी इन माई, मे बी माई सन्स समथिंग इशू कम्स इन टू प्ले.
तो मैं ऐसे नहीं करूंगी जब तक आई एम फुल्ली इनटू मी, जब तक मैं अपने आप में पूरी तरह से फुल्ली प्रेजेंट नहीं हूं, तब तक इनोवेशन डजंट कम, बिकॉज ब्रिलियंट आइडियाज डजंट कम। अब हमने अपने दिमाग को, अपने माइंड को तो बहुत सारा क्लटर से भर लिया है, तो गार्बेज इन गार्बेज आउट, जैसे कंप्यूटर में बोलते हैं ना हम डेटा को, गार्बेज डेटा इन गार्बेज डेटा आउट, सेम हमारा माइंड है, जो गार्बेज थॉट्स हम डालेंगे वही गार्बेज आउटपुट हमें मिलेगी, ठीक है ना। तो गूगल वाले ये समझ गए हैं कि अगर हमें बहुत सुंदर आइडिया, इनोवेटिव आइडिया, $1 million आइडिया चाहिए, तो वी नीड टू ट्रेन आवर एम्प्लॉइज टू बी माइंडफुल। सो दैट्स हाउ दे डू इट, इसलिए करते हैं वो। उसके बाद फोर्ड है, IBM है, सैप है, लिंक्डइन है, एप्पल है, एटना है, देयर आर ऑल मल्टीनेशनल, multi-billion, multi-trillion dollar companies, those who do it। तो वो ऐसे ही तो दे आर इनटू बिजनेस, वो ऐसे ही तो करती नहीं होंगी ये कि जब तक इसका इम्पैक्ट नहीं है ना। दे एसेस द इम्पैक्ट एज प्रॉफिट एंड लॉस, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, दे एसेस टू दैट कोर। तो जब उन्होंने ये सब एसेस करके रिजल्ट निकाला है कि ये टेक्निक काम करती है, बिजनेस में काम करती है, फायदा देती है, तो आप क्यों नहीं करते अपने लिए? आप अपना ध्यान रखो, आप सिर्फ यही कर लो, दैट इज मोर देन इनफ। मेक सेंस? यस लिख दीजिए ताकि हमारे जितेंद्र जी को पता चल जाए कि इट मेक सेंस टू यू। ऑलराइट, तो अब हम नेक्स्ट चाहते हैं। अब आया है $multi-million क्वेश्चन कि हम इसको प्रैक्टिस कैसे करें, क्योंकि अभी तक तो मैं आपको बैकग्राउंड दे रही थी इसका, है ना। अब आपको मैं इसकी प्रैक्टिस बताती हूँ, हाउ यू कैन डू इट। आर यू रेडी टू प्रैक्टिस? सब रेडी हैं? यस लिख दीजिए, फिर आई विल गिव यू प्रैक्टिस। सॉरी, ये सारा चैट सेक्शन को आप देख सकते हैं उसमें, यस। परफेक्ट परफेक्ट। तो अब सब जहां भी हैं, अपने जैसे भी बैठे हैं, कंफर्टेबल होकर बैठ जाइए, बस अपनी बैकबोन स्ट्रेट कर लीजिए। हेड और बैकबोन शुड बी स्ट्रेट। वो क्यों करना चाहिए वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, बट अभी कर लीजिए। एंड उसके बाद अपनी आंखें बंद कर लीजिए इफ यू आर फाइन, एंड टेक अ डीप ब्रेथ इन। ब्रेथ इज द की। ब्रेथ को बहुत प्रेशियस समझना है आज के बाद। ब्रेथ इज सुपर प्रेशियस। अब वैसे भी प्रेशियस है, ब्रेथ रुक जाए तो क्या होगा, वी ऑल नो, है ना। लेकिन आज के बाद इसमें एक एडिशनल प्रेशियसनेस जुड़ गई है, दैट इज टेकिंग केयर ऑफ योरसेल्फ। ब्रेथ का ध्यान रखेंगे तो आप अपना ध्यान रखेंगे, इट्स लाइक दैट। तो आप सीधे बैठ जाइए, आंखें बंद कर लीजिए, एंड टेक अ डीप ब्रेथ इन। एंड 1 मिनट। चलिए, इसके बाद आप एक और सांस लीजिए गहरी, ताकि आप रिलैक्स हो जाएं बिल्कुल। एंड नाउ ब्रिंग योर अटेंशन एंड फोकस टू योर ब्रेथ। अपनी सांसों पे अपना पूरा ध्यान ले आइए। एंड जस्ट स्टार्ट ऑब्जर्विंग कि आपकी सांस अंदर जा रही है और बाहर आ रही है। एंड ऑल्सो बिकम अवेयर, कॉन्शियस हो जाइए, अवेयर हो जाइए कि ये जब सांस अंदर जाती है तो क्या होता है, और जब बाहर आती है तो क्या होता है। एंड स्पेशली उसकी सेंसेशंस को ध्यान देना, सेंसेशंस पे ध्यान देना शुरू कीजिए। और उसकी असली सेंसेशन की शुरुआत कीजिए अपने होठों के ऊपर, नाक के नीचे, अपर लिप के ऊपर वाला जो एरिया है ट्रायंगुलर, यहां पर। जब सांस अंदर जाती है तो क्या होता है, और जब आप सांस बाहर छोड़ते हैं तो अपर लिप पे क्या होता है। What kind of sensation you feel? Just become aware of that.
कुछ फील भी होता है या नहीं, जस्ट बिकम अवेयर ऑफ दैट. ओके, so I will monitor the time, 1 minute, and you just focus on that. And I will play a sound, and then you can open your eyes after 1 minute. Hi, this is Robert Kiyosaki. So now you can open your eyes. अब आप अपनी आंखें खोल लीजिए और आप चैट में लिखिए हाउ डिड यू फील. और ये केवल 1 मिनट हमने किया है, ओनली 1 मिनट. ठीक है, आप लिखते रहिए, कीप गोइंग विद योर टेक्स्ट मैसेजेस. तो ये 1 मिनट की प्रैक्टिस हमने अभी की, जस्ट अ ट्रेलर टू यू कि कैसे आप अपने थॉट्स को इस तरह की प्रैक्टिस से मैनेज कर सकते हैं. और अगर आप ये एवरी मॉर्निंग जस्ट 15 मिनट्स करेंगे तो आप ये पाएंगे. और इसको रिलीजियसली कर लीजिए. अभी इसमें ज्यादा सोचिए मत, क्योंकि इसमें ना तो कोई आपके पैसे खर्च हो रहे हैं, है ना, और ना बहुत ज्यादा बड़ा टाइम खर्च हो रहा है जिसमें आप इतना सोच रहे हैं. अभी तो वर्क फ्रॉम होम है, घर पर हैं, तो कोई इतनी ज्यादा इश्यू नहीं है. आपका ट्रांसपोर्टेशन टाइम बच रहा है, उसमें कर लीजिए. गुड अपॉर्चुनिटी कोरोना क्राइसिस हैज गिवन यू, है ना. कोरोना ने आप सबको इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी दे दी कि आप इसको प्रैक्टिस 15 मिनट सुबह कीजिए जब आप उठते हैं, और 15 मिनट कीजिए जब आप रात को सोते हैं. क्योंकि क्या होता है, जब आप रात को सोते हैं तो आपका सबकॉन्शियस कंडीशन हो जाता है. ठीक है ना. बाकी डिटेल अगले सेशन में. अभी सिर्फ आप ये समझ लीजिए रिलीजियसली कि करना है, दैट्स इट. ठीक है, 1 महीना कर लीजिए. उसके बाद आप मैं आपको अपने कॉन्टैक्ट डिटेल दूंगी, मुझे आप मैसेज लिख के बताइएगा कि क्या इम्पैक्ट हुआ आपकी लाइफ में. एंड आई एम श्योर देयर विल बी अ प्रोफाउंड इम्पैक्ट, बिकॉज आई थिंक हंड्रेड्स एंड थाउजेंड पीपल जिनको मैं ट्रेन करती हूँ, सिखाती हूँ, दे ऑलवेज रिपोर्टेड कि उनके लाइफ में क्या पॉजिटिव चेंजेस हुए. तो मुझे नहीं लगता आप लोग क्यों डिफरेंट हैं उन 1000 लोगों से. आई एम श्योर आपके लाइफ में भी वो चेंजेस आएंगे. ये सिंपल टेक्निक मैंने जब मैं ये प्रेजेंटेशन आप लोगों के लिए बना रही थी, तो मैं ये सोच रही थी कि स्ट्रेस मैनेजमेंट में कहने के लिए इतना कुछ है, इट्स अ सो वाइड टॉपिक, और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं 1 घंटे में इसको कैसे स्क्वीज करूं, है ना. बिकॉज सो मच है. प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड, प्रैक्टिस कंपैशन, प्रैक्टिस लव, प्रैक्टिस सो मेनी थिंग्स आर देयर. लेकिन मैंने बोला अगर मैं आपको 10-15 टेक्निक बताऊंगी तो आप बस इसको एक ऐसे ही लेक्चर समझ के भूल जाएंगे, क्योंकि इतना ज्ञान सब बांट रहे. इसलिए आई हैव चूजन माइंडफुलनेस. मैंने कहा बस एक टेक्निक एंड इट विल चेंज योर लाइफ. तो सिर्फ इसको प्रैक्टिस कीजिए एंड टेल मी द रिजल्ट्स. आई वुड बी हैप्पी टू नो कि क्या चेंजेस आए आपकी लाइफ में. ठीक है ना. अब इसके कुछ बेनिफिट्स मैं आपको बता देती हूँ, जैसे कि पर्सनल वेलबींग. अब पर्सनल वेलबींग तो आप समझ ही गए होंगे. पर्सनल इफेक्टिवनेस, तो डिफरेंस क्या है इन दोनों में. सोशल कनेक्ट एंड प्रोफेशनल परफॉर्मेंस. देखिए पर्सनल वेलबींग जो है वो है आपकी स्ट्रेस को रिड्यूस करेगा. ये
आपकी फिजिकल मेंटल हेल्थ को इंक्रीज करेगा, इंप्रूव करेगा, है ना। पर्सनल इफेक्टिवनेस में क्या है कि आपकी अटेंशन एंड फोकस को बढ़ाएगा. व्हाट वी आर डूइंग राइट नाउ, वी आर ट्रेनिंग आवर अटेंशन, एंड अटेंशन ट्रेन होगी तो फोकस अपने आप बढ़ेगा. कोई रॉकेट साइंस उसमें है नहीं, राइट. उसके बाद सोशल कनेक्ट. जब आप शांत हो जाएंगे आपके रिलेशंस अपने आप बेटर हो जाएंगे. रिलेशनशिप में इशू आता क्यों है? क्योंकि हम खुद ही शांत नहीं है अंदर, तो फिर हम लड़ते ही रहते हैं, मनमुटाव बनाते ही रहते हैं, हमारी ईगो इतनी हाई हो जाती है. लेकिन जब हम अंदर से पीसफुल और शांत हो जाएंगे, ईगो शेड हो जाएगी, तो रिलेशंस अपने आप बेटर हो जाएंगे. लास्ट है आपका प्रोफेशनल परफॉर्मेंस. जब ये सब हो जाएगा तो प्रोफेशनल परफॉर्मेंस तो बढ़नी ही है ना. आप मोर प्रोडक्टिव हो जाएंगे, कम समय में आप ज्यादा काम कर पाएंगे, ज्यादा अचीव कर पाएंगे, सक्सेसफुल हो पाएंगे. These are some of the benefits of mindfulness. अब इसका न्यूरोसाइंस से भी रिलेशन है. Whatever I am telling you today, it's not just mere thoughts. थ्योरी नहीं है ये. इसीलिए मैंने ये सब्जेक्ट चूज किया था आज आपको बताने के लिए, because this is based on research, scientific evidence, neuroscience. और इतने रिसर्च हुए हैं और भी हो रहे हैं. Currently, I am working with the army as a consultant, and I am just putting the program based on mindfulness and neuroscience to train mental endurance. समझ रहे हैं आप? ये इतनी बड़ी चीज है जिसको आप छोटा मत समझना इसको. This is so massively impactful. Okay? तो अब ये देखिए माइंडफुलनेस न्यूरोसाइंस से कैसे रिलेटेड है, बिकॉज ये दो तरह से, मतलब अभी मैं आपको बहुत हाई लेवल ओवरव्यू दे रही हूँ बिकॉज टाइम नहीं है. आई विश आई वुड हैव मोर टाइम, लेकिन फिर कभी किसी और समय पर, क्योंकि ये एक तो ब्रेन वेव्स को इम्पैक्ट करती है, ह्यूमन ब्रेन वेव्स. क्योंकि आपको पता होगा जैसे गामा, बीटा, अल्फा, थीटा, डेल्टा, ये डिफरेंट स्टेज वो होती हैं ब्रेन वेव्स, और ये डिपेंड करती हैं कि कितने साइकिल्स पर मिनट है ब्रेन वेव. तो जितनी ज्यादा चिक 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 जो दिख रही है ना आपको सबसे ऊपर गामा, उतना क्लटर्ड माइंड है, उतना हम स्ट्रेस में जाते हैं. और जितना हम थीटा और डेल्टा और अल्फा में जाते हैं उतना हम शांत और रिलैक्स होते जाते हैं. थीटा में तो हम सो ही जाते हैं, है ना. तो इवन अल्फा में भी हम आ जाए, दैट इज गुड इनफ. जो योगीज हैं वो तो मतलब स्लीप में भी अवेयर रहते हैं, एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ प्रैक्टिसिंग माइंडफुलनेस एंड मेडिटेशन ऑल्सो, राइट. सेकेंड चीज है कि जब हम शांत हो जाते हैं तो हमारी बॉडी में से न्यूरोट्रांसमीटर्स निकलते हैं जिसको हैप्पीनेस हार्मोन्स भी कहते हैं, लाइक डोपामिन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन, ओपिएट्स जो पेन किलर होते हैं, है ना. आप रिसर्च कर लीजिएगा गूगल में इसके बारे में. आई विल नॉट गो डीपर इनटू दैट जस्ट फॉर द बेनिफिट ऑफ टाइम. लेकिन ये दो चीजें हैं जो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट होती हैं, जिसकी वजह से हम रिलैक्स होते जाते हैं, शांत होते जाते हैं, और वी गेट ऑल दीज बेनिफिट्स व्हिच आई एक्सप्लेन्ड यू इन द प्रीवियस स्लाइड्स. मेक सेंस? कुछ लॉजिकल लग रहा है ये, या थ्योरी लग रही है बस? I hope you. Yes, comment में आने लगा. Yes. So now, $1 million thing again. Regular practice is the key. कितने $1 million दिए आज मैंने तो आप लोगों को? I don't know. But regular practice is the key. बिना प्रैक्टिस के नहीं होगा ये प्रूवन है, proven by scientific research in big and best laboratories. Not only के बस मैंने घर में scientific research कर ली and I'm saying this. No, in the most latest advanced research labs this is being proven. लेकिन ये बिना प्रैक्टिस के नहीं होता है. इसमें सबसे खास बात ये है कि ये आपकी जगह मैं नहीं कर सकती हूँ कि मैं आप 265 लोगों के लिए, 261 लोगों के लिए बस मैं ही कर लूं माइंडफुलनेस, आप सबको फायदा हो जाए, वो नहीं होता है इसमें. ये इसका चैलेंज है. मे बी आने वाले समय में हो जाए, व्हेन वी विल इन्वेंट न्यूरो चिप्स एंड ऑल दैट, कि माइंड में न्यूरो चिप डाल दो और मेडिटेशन का फायदा सबको मिल जाए. आई डोंट नो, फ्यूचर इज येट टू कम इन दैट सेंस, लेकिन फिलहाल आपको ही करना पड़ेगा.
एंड रेगुलर प्रैक्टिस इज द की. उसके बिना फायदा रियलाइज नहीं होगा. देयर इज नो बेनिफिट इफ यू डोंट प्रैक्टिस. दिस इज अ डिस्क्लेमर, रिस्क अलर्ट जो मैं आपको पहले से बता रही हूँ, है ना. आप बोलोगे मैडम ने बताया तो था बड़ा माइंडफुलनेस, हुआ तो कुछ भी नहीं. लेकिन वन की पॉइंट यू विल मिस कि आपने प्रैक्टिस नहीं की. ठीक है ना. तो प्रैक्टिस इज द की. क्यों? बिकॉज इट इम्पैक्ट्स योर न्यूरोप्लास्टिसिटी. एंड न्यूरोप्लास्टिसिटी का मतलब है कि आपके ब्रेन को चेंज करता है ये. एंड सेल रीजेनरेशन, आपके बॉडी के जो डैमेजेस हैं उन सबको रीजेनरेट करता है, हेल्दी बनाता है. एंड दैट्स व्हाई प्रैक्टिस इज द की. मेरे ख्याल से टाइम हो रहा है. जितेंद्र जी ऐसे लग रहे हैं कि शायद वी आर रनिंग. अभी है हमारे पास 15 मिनट, एक्चुअली 10-15 मिनट हमारा क्वेश्चन आंसर सेशन. यस यस. So these are the two things जो रेगुलर प्रैक्टिस इंपैक्ट करती है. कि जब आप रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं तो आपकी न्यूरोप्लास्टिसिटी, न्यूरल नेटवर्क्स, न्यूरल पाथवेज डेवलप होते हैं जो आपको रिलैक्स रखते हैं इवन टफ से टफ सिचुएशन में. आपका मेंटल एंड्योरेंस इनहांस करते हैं. और सेल रीजनरेशन, जैसे मैंने कहा, अगर बॉडी में कुछ डैमेज है, इंटरनली डैमेज है, टिश्यूज में डैमेज है और आपको पता भी नहीं है, तो जब आप ये रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं तो अपने आप हील होती है बॉडी. ओके. तो आप डेली प्रैक्टिस कैसे करें? सम टिप्स एंड सम स्टेप्स. 5 to 10 minutes, 15 minutes ब्रेथ वॉचिंग करें मॉर्निंग में बिफोर स्लीपिंग. और जब भी आप कोई एक्टिविटी भी करते हैं स्टार्ट ना, जैसे स्टूडेंट्स हैं अगर यहाँ हमारे साथ प्रोजेक्ट्स करते हैं, तो प्रोजेक्ट से पहले 10-15 मिनट कर लें. 5 मिनट ही कर लें. 15 मिनट नहीं होते उस समय, 5 मिनट कर लें. डीप ब्रीथिंग, ऑब्जर्व योर ब्रेथ. गुड, यू आर गुड टू गो. यू विल बी कॉन्फिडेंट. और स्टूडेंट्स जैसे हैं, अब आपको इतने सारे इंटरव्यूज देने होंगे, कुछ पास आउट करने वाले होंगे, तो इंटरव्यू में नर्वसनेस हो जाती है ना. तो उसके लिए क्या करो? बस 5 मिनट्स प्रैक्टिस माइंडफुलनेस. यू विल बी कॉन्फिडेंट इन इंटरव्यू. एग्जाम दे रहे हो, 5 मिनट्स प्रैक्टिस माइंडफुलनेस. ठीक है ना. और बीच बीच में भी 1-2 मिनट के ब्रेक लेते रहिए. जैसे बहुत ओवरवेल्म लग रहा है इस समय, बहुत काम आ गया, इसके असाइनमेंट्स भी हैं, उसके एग्जाम भी हैं, बहुत सारी चीजें आ जाती हैं एक साथ, तो बस 1-2 मिनट ब्रेक लेके माइंडफुलनेस. कीप योर माइंड काम एंड जॉयफुल. नो फियर. फियर को भगा दीजिए अपनी लाइफ से. देयर इज नथिंग कॉल्ड फियर. ये केवल मेंटल मॉडल्स हैं. और नो नेगेटिव न्यूज. टीवी का टाइम निर्धारित कर दीजिए, मोबाइल में न्यूज और टीवी का. मे बी बस दोपहर को थोड़ा सा और थोड़ा शाम को, नॉट 24/7. ठीक है ना. एंड मैनेज योर टाइम एंड थॉट्स केयरफुली. तो अपने को मैनेज करने के लिए अपने थॉट्स को मैनेज कीजिए केयरफुली. एंड दिस इज व्हाट आई हैव टू से टुडे. ये मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, मेरा ईमेल है. अच्छा, एक ये वेबसाइट है www.careerhub.QA. आई एम अ फाउंडर ऑफ करियर हब हियर इन कतार. और उसको मैंने जो बनाया था, ये सोच के बनाया था बिकॉज आई टेक केयर ऑफ इंटर्न्स एवरी ईयर 50 इंटर्न्स को वी ट्रेन. तो वो हमेशा मुझसे पूछते थे कि हम इंटर्नशिप के लिए कहाँ अप्लाई करें, जॉब्स के लिए कहाँ अप्लाई करें, हम क्या क्या ट्रेनिंग कहाँ अवेलेबल है. तो उन सबको हेल्प करने के लिए आई मेड दिस वेबसाइट careerhub.QA. यहाँ पर हम इंटर्नशिप पोस्ट करते हैं, जॉब्स पोस्ट करते हैं. तो जो स्टूडेंट्स आज हमारे साथ हैं, they can take advantage. I have opened India also as a chapter. तो enroll yourself. और आजकल तो अच्छी बात ये हो गई, अब बाउंड्रीज रही नहीं है. वर्चुअल इंटर्नशिप, ऑनलाइन इंटर्नशिप, तो इवन यहाँ की अपॉर्चुनिटीज यू कैन ग्रैब. अगर यहाँ कोई आती है इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी ऑनलाइन, यू कैन अप्लाई. एंड आई विल ऑल्सो प्रमोट यू गाइज, जहाँ पे मुझे दिखती है कि ऑनलाइन अपॉर्चुनिटीज हैं और आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं. तो रजिस्टर योर सेल्फ. और एक YouTube चैनल है जो मैंने अभी हाल फिलहाल में बनाया है, हैप्पीनेस इनसाइड यू. उसमें मैं अपनी टॉक्स कभी कभी डालती रहती हूँ. आजकल तो काफी टाइम से नहीं डाली बिकॉज आई वॉज वेरी बिजी. तो लेकिन जब भी मौका मिलता है मैं डालती हूँ. तो जस्ट यू कैन सब्सक्राइब इफ यू वांट. तो इससे आपको अच्छा कंटेंट मिलता रहेगा. सो दिस इज all about my contact details. Feel free to contact me. LinkedIn profile and all that is there. And then I think that's pretty much it. So we will end.
my talk today, my session today, and now I'm open for Q&A. सो कुछ क्वेश्चन है हमारे पास में जो पहले से प्री पोस्टेड है, हम उसमें से कुछ ले लेते हैं, फिर हम कुछ आप ले लीजिए। डायरेक्ट ऑडियंस जो अटेंडीज हैं उनसे भी ऑडियो को कनेक्ट करेंगे मैम। सो बिल्कुल। पहला सवाल है महिमा राजपूत की तरफ से, जी। व्हेन अ क्रिटिकल सिचुएशन व्हिच we don't accept occur in life, then how can we control our anger issues? तो आई थिंक महिमा के क्वेश्चन का जवाब तो मैंने ऑलरेडी दे ही दिया होगा अपने इसमें, लेकिन मैं महिमा को इन शॉर्ट में ये बोलूंगी कि देर आर टू थिंग्स इन लाइफ, एंड आई एम अ बिग बिलीवर ऑफ दिस मॉडल एंड आई अप्लाई इन माई लाइफ एवरी डे, which is circle of influence and circle of concern. This is from Stephen Covey's book, 7 Habits of Highly Successful People. तो उसमें क्या होता है कि एक इनर सर्कल होता है ऐसे, और एक इसके आउटर सर्कल होता है, दो कंसेंट्रिक सर्कल्स होते हैं. इनर सर्कल इज सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस, दैट एक्टिविटीज वी कैन डू समथिंग अबाउट, वो एक्टिविटीज जिसके लिए हम कुछ कर सकते हैं. आउटर सर्कल होता है जिसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते, है ना. तो स्टार्ट फोकसिंग ऑन एक्टिविटीज जिसमें हम कुछ कर सकते हैं, क्योंकि जहां हम फोकस करते हैं वो सर्कल बढ़ता जाता है. बिकॉज एनर्जी फ्लोज वेयर अटेंशन गोज. जहां आप अटेंशन डालते हो वो एरिया बढ़ता जाता है. तो यू विल फील धीरे धीरे कि आई एम इन कंट्रोल ऑफ मोस्ट ऑफ द थिंग्स, है ना. माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करो, इट विल बी गुड. थैंक यू मैम. नेक्स्ट क्वेश्चन है तबीस वानी की तरफ से, हाउ टू डील विथ एक्यूट स्ट्रेस. हाउ टू डील विद एक्यूट स्ट्रेस, बस उसको डील करने का तरीका वही जवाब मैंने अपने इसमें दिया है सेशन में, उसका भी. प्रैक्टिस माइंडफुलनेस एंड प्रैक्टिस इंटरनल, योर इंटरनल वेलबींग. अंदर से अपने को स्ट्रांग बनाओ, अंदर से अपने आप का मेंटल एंड इमोशनल एंड्योरेंस स्ट्रांग करो अपने को. स्ट्रेस क्या, बाहर की चीजें, खुद स्ट्रांग हो जाओ, इट विल ऑल गो. mindfulness. So next question है मैम अमित शर्मा की तरफ से, व्हाट इज द रोल ऑफ फूड टू अवॉइड स्ट्रेस. What is the role of food? हाँ फूड. ओके, तो फूड का भी रोल बहुत इंपॉर्टेंट है. देखिए हमारे तो एंशिएंट टेक्स्ट में कहा है जैसा खाओ अन्न वैसा हो मन, और मन की तो सारी बात ही हम कर रहे हैं आज. माइंड ब्रेन नहीं है, बाय द वे. जो माइंड की मैं बात कर रही हूँ वो ब्रेन नहीं है, है ना. उसमें भी डिफरेंस समझ लीजिए. ब्रेन, अच्छा मैं आपको ऐसा एग्जांपल देती हूँ, एनालॉजी जो आपके साथ आप अच्छे से समझ पाएंगे. लैपटॉप है आपके पास, उसका हार्डवेयर जो है लैपटॉप का वो तो है आपका ब्रेन, और जो उसका सॉफ्टवेयर है वो है आपका माइंड, है ना. तो माइंड जो है जैसा खाओ अन्न वैसा हो मन, तो फूड तो बहुत जरूरी है, न्यूट्रिशियस खाना. क्योंकि अगर आप जंक फूड खाएंगे, पिज्जा बर्गर खाएंगे, तो होगा क्या, आपकी बॉडी में टॉक्सिसिटी बढ़ जाएगी, और जब टॉक्सिसिटी बढ़ जाएगी तो फिर आप उस लेवल पे एनर्जी आएगी ही नहीं जहां आप कंफर्टेबल एंड काम रह पाए, है ना. सात्विक फूड इसीलिए तो कहा है, सात्विक फूड खाए अगर आपको प्योरिटी बढ़ानी है बॉडी की, एंड प्योरिटी जैसे जैसे बढ़ेगी आप रिलैक्स और काम होते जाएंगे. अब मैं कुछ लाइव सवाल ले लूं मैं. हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप इंचार्ज हैं अरविंद जितेंद्र जी, यू टेक. अगर अटेंडीज जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं डायरेक्टली हमारे एक्सपर्ट से कुछ बात करना चाहते हैं, अपना कुछ सवाल पूछना चाहते हैं, तो आप रेज हैंड का ऑप्शन है उसको हैंड रेज करें. हमारे पास कुछ रेज हैंड के ऑप्शन है. सो डॉक्टर यशोदा दामोदरन, प्लीज कनेक्ट वॉइस. डॉक्टर यशोदा दामोदरन. Please unmute your mic and ask your question. Can you hear me? हेलो, Can you hear me, sir? वॉइस आपका क्लियर नहीं है मैम. Sir, can you hear me? Hello, sir. हेलो, हाँ आप सवाल पूछिए अपना मैम. Are you able to hear me, sir?
Hello, sir. हेलो, हाँ आपकी वॉइस आ रही है, आप सवाल Can you पूछें. hear me? यस यस, यू कैन आस्क योर क्वेश्चन नाउ. मुझे लगता है कुछ नेटवर्क इशू है. चलिए दूसरा So, क्वेश्चन ले लीजिए, हाँ. बाद में जब उनका ठीक हो जाएगा तब ले लीजिएगा। नेक्स्ट आप सनी हांडा को कनेक्ट कर दें. सनी हांडा कुछ सवाल पूछना चाह रहे हैं. हाँ, प्लीज अनम्यूट योर माइक. सान्या, Sanya, please unmute your mic and ask your question. मुझे लगता है नेटवर्क प्रॉब्लम इनके साथ भी है कुछ, या चलिए कोई और ले लीजिए। अमित इज एक शर्मा, कैन आई आस्क? हाँ, एकता अग्रवाल, कनेक्ट एकता अग्रवाल. एकता, प्लीज अनम्यूट योर माइक. हाँ, आस्क योर क्वेश्चन. हेलो जी मैम, मैम फैमिली में रहते हैं तो डिस्टेंस तो होता ही है, अपने आप को काम करने की कोशिश भी करते हैं लेकिन सफल नहीं होते, उसके लिए क्या करना चाहिए? जितेंद्र जी, आप बोल दीजिए क्वेश्चन, मुझे ठीक से हाँ, एक बार फिर से आप रिपीट कर दें एकता जी. इको हो रही है साउंड। हाँ, आपकी साउंड बड़ा इको हो रही है, आप एक बार रिपीट कर दें सवाल को. जी मैं पूछ रही हूँ, जैसे फैमिली इशूज तो होते ही है हाँ, और शांत रखने की कोशिश भी करते हैं लेकिन पूरी तरह से सक्सेस क्यों नहीं होते? फैमिली इशूज पे सवाल है इनका कि हम कोशिश करते हैं मीट आउट करने की लेकिन फिर भी सक्सेस नहीं होते हैं. सो क्या फैमिली करें? पर, हाँ, फैमिली पर या सोच पर क्या है? फैमिली इशू, फैमिली में जो इश्यूज फैमिली होते इशू, हैं. ओके ओके। तो देखिए, जो फैमिली इश्यूज होते हैं, वो वाली बात होती है ना कि जब जहां एक साथ बर्तन होते हैं वो खड़कते हैं, एक कहावत है ना। तो वो बेसिकली क्या होता है कि बिकॉज हमारी ईगो इतनी हाई होती है कि हम लाइफ में यही प्रूव करना चाहते हैं और करते रहते हैं कि आई एम राइट। हम दूसरे का व्यू पॉइंट को समझते नहीं हैं, वी जस्ट वांट टू प्रूव आई एम राइट। इसलिए ईगो क्लैशेस होते हैं जिसकी वजह से कंफ्लिक्ट होते हैं। लेकिन व्हेन वी अंडरस्टैंड बिगर पर्सपेक्टिव, उसको थोड़ा सा हम डीपली अंडरस्टैंड करते हैं, माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करते हैं, अंदर से शांत हो जाते हैं, तो हम लेट गो करना शुरू कर देते हैं। हम ये सोचना शुरू कर देते हैं कि अनजान है ये व्यक्ति, इसको समझ नहीं है, तो क्या इससे बहस करनी, इसको छोड़ दो, लेट गो। अपने आप टाइम समय के साथ समझ में आएगी, है ना। तो फैमिली कॉन्टेक्स्ट में यही होता है कि आप वैसे तो छोड़ नहीं सकते, फैमिली है, लेकिन जो बातें आपको बुरी लग रही हैं उसको लेट गो करना शुरू कीजिए, क्योंकि वो इम्पैक्ट आपको कर रहा है। इट इज इम्पैक्टिंग योर हेल्थ, योर वेलबींग, दूसरे का नहीं जा रहा है कुछ। आपको गुस्सा आ रहा है तो इट इज किलिंग यू, इट इज इम्पैक्टिंग योर हेल्थ। तो फॉर द बेनिफिट ऑफ योर ओन हेल्थ आप उसको लेट गो शुरू कर दीजिए, नंबर 1। एंड नंबर 2, माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करिए, तो इट विल हेल्प यू टू लेट गो। ओके, नेक्स्ट डॉक्टर भास्कर मिश्रा. डॉक्टर भास्कर मिश्रा, वॉइस कनेक्ट कर दें प्लीज. प्लीज अनम्यूट योर माइक, डॉक्टर भास्कर जी. अपना माइक अनम्यूट कर लें डॉक्टर भास्कर. कुछ टेक्निकल इशू होगा इनके साथ, आप दूसरे को कनेक्ट कर दें. विवेक सिंह, विवेक सिंह. हेलो हाँ विवेक जी, अपना सवाल पूछें. मैम, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेस एंड मूड स्विंग? स्ट्रेस एंड मूड स्विंग, मूड स्विंग, यस मैम. ओके। नॉर्मली प्रॉब्लम मूड स्विंग की ज्यादातर दिखाई दे रहा है आजकल के टाइम में. हाँ हाँ हाँ, तो मूड स्विंग देखिए है क्या। मूड स्विंग, मूड स्विंग ये है कि अचानक से आपको कुछ अच्छा नहीं लग रहा, राइट? अचानक से गुस्सा आ गया, अचानक से यू आर फीलिंग डिप्रेस्ड एंड फ्रस्ट्रेटेड,
Is it? This is what you call mood swings? कहाँ? भास्कर जी की वॉइस डिस्कनेक्ट हो गई है, आप बस एक्सप्लेन कर दें मैम थोड़ा सा बस। हाँ, तो ये मूड स्विंग होते हैं, तो ये आफ्टर इफेक्ट ऑफ टू मच एक्यूमुलेशन ऑफ स्ट्रेस है। जब स्ट्रेस ऐसा होता है ना, स्ट्रेस स्टार्टिंग में ऐसा लगता नहीं है स्ट्रेस है, स्ट्रेस स्टार्ट विद वेरी स्मॉल थिंग, लेकिन वो आप ध्यान नहीं देते तो वो एक्यूमुलेट होती जाती है, बढ़ती जाती है, एंड देन वन ऑफ द इम्पैक्ट इज मूड स्विंग ऑल्सो, एंड दैट्स द डिफरेंस। स्ट्रेस इज द रूट कॉज फॉर मूड स्विंग, अगर मैं इसको ऐसे डालूं तो। दिलीप सिंह राजपूत को कनेक्ट कर दें नेक्स्ट सवाल के लिए। दिलीप सिंह राजपूत। हेलो दिलीप जी, आप अपना सवाल पूछें। दिलीप सिंह राजपूत। दीपाली सिंह राजपूत। DIPA, प्लीज कनेक्ट टू वॉइस। दीपाली सिंह राजपूत। हेलो। हाँ मैम, अपना सवाल पूछें। हाँ दीपाली। यस मैम, मेरा क्वेश्चन ये है कि अभी तो हम यूथ हैं, तो हमारे अंदर ये जिज्ञासा है कि आगे के आने वाले समय में हमें जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी। साइकोलॉजिकल इफेक्ट ये रहता है कि दिन में कि हम आगे क्या करेंगे, हम बचेंगे या नहीं बचेंगे, और पर डे इतने सारे केसेस बढ़ते जा रहे हैं। तो इसके लिए हमें पर डे क्या से क्या करना चाहिए कि जिससे हमारा मूड जो है, दिमाग एकदम शांत रहे। ओके, सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आप एक तो सबसे पहले ये देखिए कि आपका इस स्ट्रेस का या इस थिंकिंग का रूट कॉज क्या है। रूट कॉज है अगर फॉर एग्जांपल जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी एंड दैट इज क्रिएटिंग यू स्ट्रेस, तो आपको रूट कॉज के लिए कुछ करना पड़ेगा ना। व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू डेवलप एंड एनहांस योर स्किल्स। मैंने एक असेसमेंट फॉर्म भेजा था, आई डोंट नो हाउ मेनी पीपल फिल्ड इट, आई हैव नॉट सीन। जितेंद्र जी वो कितने नो? वो लगभग हमने जो हमारे रजिस्टर्ड पार्टिसिपेंट थे सभी को शेयर किया है। 300 के आसपास पार्टिसिपेंट्स थे जो रजिस्टर्ड। हाँ, सो आप एक बार, क्योंकि वो रिस्पांस हमारे पास था नहीं, वो आपके पास होगा, सो आप देख सकते हैं। मैंने देखा नहीं एक्चुअली, तो मैं ऐसे चैट बॉक्स में भी भेज देती हूँ। तो फर्स्ट यू डू असेसमेंट एंड जितेंद्र जी आफ्टर द सेशन यू सेंड इट टू एवरीवन, ताकि दे विल डू असेसमेंट कि रूट कॉज क्या है इशू का, क्योंकि जो रूट कॉज होगा फिर हम उसी के लिए कुछ करेंगे। नंबर 1 तो ये हुआ, जैसे आपका इशू है जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी, तो यू स्टार्ट इंप्रूविंग योर स्किल्स। सबसे इंपॉर्टेंट फंडामेंटल बात है, क्योंकि आजकल जो जॉब मिलनी है और फ्यूचर में, अब किसी दिन हो सकता है आई विल डू फ्यूचर ऑफ वर्क सेशन, आई थिंक दैट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर ऑल ऑफ यू। आई डू दिस सेशन कि फ्यूचर वर्क का फ्यूचर क्या है, हाउ वर्क विल गो इन फ्यूचर, बीइंग अ ह्यूमन रिसोर्स प्रोफेशनल्स, आई थिंक दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। क्योंकि फ्यूचर में जॉब सिर्फ सर्टिफिकेट से नहीं मिलेगी कि यू हैव engineering, you have a degree of this, you will not get job, you will get job based on your skills. तो start enhancing your skills, और इसीलिए I have shared career hub का पोर्टल आप लोगों के साथ। वर्चुअल इंटर्नशिप करिए, एक्सपीरियंस लीजिए, कोडिंग सीखिए, अपने स्किल्स को एनहांस कीजिए, यू नो दैट विल गिव यू कॉन्फिडेंस कि मुझे कुछ आता है, आई एम वैल्यूएबल, आई कैन डू समथिंग। तो इट विल रिड्यूस योर एंजाइटी एंड स्ट्रेस। दूसरी बात यह है कि आप जब माइंडफुलनेस करेंगे तो दिस विल गिव यू इनर स्ट्रेंथ एंड कॉन्फिडेंस टू डील विद एडवर्सिटी और टफ सिचुएशंस। हमारे पास सवाल तो बहुत हैं लेकिन टाइम का लिमिट है मैम, सो मैं प्रिंसिपल मैम से रिक्वेस्ट करूंगा वो अपना माइक अनम्यूट कर लें तो सेशन को हम क्लोज करने की तरफ बढ़े हैं। तो हाँ मैम, अपना माइक अनम्यूट कर लें। मेरा निवेदन आपसे वोट ऑफ थैंक्स के लिए। Thank you once again, Dr. Jiten, for connecting me. और मैं
आज रुचि जी का बहुत 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 थैंक्स देना चाहती हूँ उनको। सबसे पहले तो उन्होंने विवेक फैमिली की रिक्वेस्ट को माना और हमारे साथ आज का ये सेशन उन्होंने लिया। दूसरा कि आज इतने सारे के इम्पोर्टेंट जो हमारा स्ट्रेस लाइफ है उसको उन्होंने किस तरह से स्ट्रेस फ्री करना है के लिए जो प्रैक्टिस सेशन उन्होंने 1 मिनट का जो दिया, माइंडफुलनेस की जो उन्होंने बात कही है, वो हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल है। और मैं देख रही थी कि कमेंट्स में भी रिलैक्सिंग, कूल, पीस आ रहा था। लोगों ने प्रैक्टिस किया और उसके बाद उसका असर भी देखा। तो आई एम श्योर कि ये जो सेशन है, इट्स बिगनिंग, ये एक शुरुआत है और आप हमसे जुड़ती रहेंगी। और जो भी आपने हमें और हमारे पार्टिसिपेंट्स को सजेस्ट किया है कि किस तरह से इनसाइट आपको अपने आप को जानना है, और सबसे बड़ा जो एक आपने हमें की दिया है कि रेगुलर प्रैक्टिस इज द ओनली की। अगर हम प्रैक्टिस करते रहेंगे तो ही हमें असर दिखेगा। और ये हम सब जानते हैं कि अगर आप डॉक्टर के पास भी जाते हैं तो जब तक आप पूरा कोर्स नहीं करते हैं तब तक आपकी कोई बीमारी दूर नहीं होती है। डायग्नोस आपको खुद ही करना है अपना स्ट्रेस को, और उसके बाद आपको अपना ट्रीटमेंट भी, उपचार भी आपको खुद ही करना है बाय दिस प्रैक्टिस जो आपने बताई है। वो हम सब करने के लिए सब रेडी हैं और ये बताया है कि इसको बीच में छोड़ना नहीं है, एंड वी कैन डू इट। जितना हमारे पास समय है हम उतना ही डिवोट करके इसको करेंगे। और थैंक यू सो मच टू ऑल आवर पार्टिसिपेंट्स जिन्होंने इसको अटेंड किया, क्योंकि हम एक ऐसी सोसाइटी चाहते हैं, दिस इज नॉट फॉर इंडिविजुअल, हमारी सोशल वेलबींग के लिए जरूरी है कि हम सब स्ट्रेस फ्री हों और इस प्रैक्टिस को आगे बढ़ाएं। और हम चाहते हैं कि आगे के सेशंस में भी रुचि मैम हमारे साथ जुड़ेंगी और हम सबको इसी तरीके के बेनिफिट्स देती रहेंगी। थैंक यू फॉर शेयरिंग योर, आपने जो एक आईडी दिया है, आपने जो एक हब का जो हमें दिया है लिंक, हमारे स्टूडेंट्स को, हमारे पार्टिसिपेंट्स को, जिससे सब जुड़ेंगे। और थैंक यू सो मच टेक्निकल टीम, डॉक्टर हितेश जी, इंजीनियर अनुज एंड डॉक्टर जितेंद्र जो लगातार हमारे साथ जुड़े रहते हैं, हमारा मैनेजमेंट जिन्होंने हमें एक प्लेटफॉर्म ये दिया है कि हम सब इसका फायदा उठा सकें और अपने पार्टिसिपेंट्स, अपने सोसाइटी के लिए कुछ कर सकें। थैंक यू सो मच। आपको एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद रुचि जी, विवेक फैमिली की ओर से। वी विल मीट सून, हम कभी ना कभी फिर जरूर मिलेंगे, चाहे अभी, चाहे ये सोशल डिस्टेंसिंग खत्म होने पे, जब भी आप यहाँ आएंगी तो हम लोग एक बार फिजिकली आपस में आस-पास बैठ के आपको देखेंगे और जानेंगे, जबकि ये डिस्टेंसेस खत्म हो जाएंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू रुचि मैडम, थैंक यू सो मच, थैंक यू। जिन लोगों ने अभी फीडबैक फॉर्म नहीं भरा है, चैट सेक्शन में है, फीडबैक फॉर्म भर दें, ये मैंडेटरी है सर्टिफिकेट के लिए। So thank you so much everyone. Dr. Jitendra, thank you so much for making it grounded with your presence, and thank you Deepti ji for inviting me, and thank you everyone, these participants, lovely participants. I can see a lot of feedback coming in, messages coming in. Thank you so much for your love, affection, and giving me this opportunity. I am blessed. Thank you so much sir, thank you. Thank you.